if anyone of you wants a quick 2-minute restroom break, please feel free to do that. I'm sure you've all been sitting here for a while. All good? Okay. I'll just sit and take this. Because we're a small group, I'll introduce myself and I'd love to get to know all of you better also. So my name is Aruna. I started my career as a lawyer because in my family, a fourth generation business class family, the idea was if you're very good at studying, then why do you need to do a business? 15 years ago, 20 years ago, if you're good at studying, you go get a good job. And people who are not good at business, not good at studying, they get the business. So my sister got all of it. And I'm sure for all of us that was the case, right? 10-15 years ago, कि business करने के लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? मतलब at least in Pathan families, Punjabi families, Sindhi families, Marwadi families, Andhra families. The idea is you learn it when you're born. You're born into a business class family, you learn it, right? That was the same case that happened to me. So I was not allowed to join the family business at all, and this was a fourth generation family business. Went into law school, did really well there. So one thing about me is I love studying. Like, you can leave me and I just want to study. That's my thing. I taught law school also for 3 years straight. 10th grade also I topped India. Right now also I'm doing one course while I'm teaching our UG and PG programs side by side. Went to Europe, came back during COVID, and by that time had thankfully saved up enough money because I was earning in euros and dollars and was spending in India. Lots of money saved, so my parents couldn't say anything when I ended up starting my business, and it was COVID time, so there was nothing else to do really at that time for us. Started that, became one of the youngest women in India to be backed by Microsoft Global. Antler funded my startup as well. It's called Salad, and you can look it up online as well. It was featured on Vogue, India, Asia, Vice, across the board. Then went and led growth for a longevity sciences startup, which has been recently acquired by Times Group of companies. So उनके healthcare vertical में now that startup operates. Then joined SuperU as the first business hire with Nikunj and Ranveer Singh to launch the protein brand. Started it from pre-launch with Nikunj and scaled it to 150 crore last year, a year ago actually. June last year is when I quit my job and taken a sabbatical. I've taught WTF cohorts, so work very closely with Nikhil Kamat's investments on everything go-to-market, consumer businesses, and a lot of founder mindset also. I've been part of Mesa for the last 2 years. I started teaching the PG cohort, everything on consumer behavior, founder mindset, relationships, offline sales, a lot of relationship building, which I think like personally I feel hospitality and who you are going to be as a person is going to be the deal maker or breaker in the coming 20-30 years. So do a lot of coaching on that, and earlier this year I joined Mesa full time as the director of venture building. So now I build all of our programs across venture building for UG, PG, personally mentor every kid building consumer tech and family businesses. I'm also launching a separate track for everyone from the family business background this year, and working with them very closely. That's just some context about myself. Would love to quickly get to know all of you also. If you can tell me where you're from and what is the work background, and if you found out about Mesa or your kid did. Should we start with you? I'm Vikas Jain. Okay. From Mandya. So sit around, से एकदम relax. No stress. हमारा पुराना business है. Okay. We are in finance. Finance. Okay. And your kid found out about Mesa or you found out? I knew. He found it out. Okay. Should we go with you? Yeah, actually my sister is here. Okay. Not my child, but I knew about Mesa a little bit. She insisted that she would like to do it. We have a family business. Currently, I'm working outside in this company called Agilitas. It's based out of Bangalore itself. Okay. We are into like sportswear manufacturing and retail and all. Nice. And you're from Bangalore only? Okay. And you, ma'am? My daughter, she Lovely. found out about it. Got it. She was quite interested, but we were a little confused because of the degree thing. We'll talk about it. Yeah, we'll talk about it. No stress. Yeah. Thank you. Yeah. Rahul, I'm from Surat. Okay. I'm Riddhi's father. Okay. And मतलब मैं family business में काम कर रहा हूँ. And Riddhi is the one who Found out. found out. Got it. Okay. I am Sriya, like sister of one of the people, Okay. and I'm a fashion stylist. I work at Technosport.
Okay, and you're from Andhra. Andhra Pradesh. Okay. You sir? Yeah, I'm Saurav. I'm Shree's father. So I'm an entrepreneur myself, and so actually through a friend we Okay. found out, and we live in Bangalore. Okay, great. Yeah. Hi, I'm Vaishakhi. We're from Bombay. Okay. I found out about MESA, I think from the last 1 year. So Okay. MESA and Masters Union was Sure. my, Yeah. so that was it. And, Awesome. And what's the work background of you guys? he's into films and Okay. I'm into events. Nice. Lovely. Yes. So. Myself Debashish and father of Akshat. Hmm. Actually, Misha, I knew it before, I think last year, landed in my mail Okay. for internship. Okay. So we were looking for interns and all. This year, my brother has suggested to Akshat that you can write this college also, but I've not known much about this. So yeah, just exploring it. I myself is an entrepreneur. It's been 3 years into the fintech. Okay. So we have 3 brands, BlueSwap, Fastflow Pay and Bluefin 360. My brother is also at 10 years old, fintech into logistic, Truckee.com. So this is what we are. Awesome. Yeah. You? मैं मोहम्मद अनीशुल हक Okay. मेरे बेटे के लिए आए हैं हम सैफुल हक इनका नाम नाम जी. जी मैं रेलवे में हूँ कंट्रोलर हूँ नागपुर में Very. और उन्होंने ढूंढा या आपने ढूंढा? उन्होंने ही ढूंढा उसका हमने बहुत कोशिश किया कि गवर्नमेंट जॉब करे लेकिन उसका माइंड इधर ही था तो फिर हमने इसको डिसीजन लिया कि इधर ही पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया. Couple of things. I will give you some context on degree also. मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में टॉप गवर्नमेंट जॉब्स भी स्मार्ट लोगों के पास ही जाने वाले हैं जितना. जी. और मैं पॉलिटिकल बिजनेस में आप होते हो तो पॉलिटिक्स आप कनेक्शन होता है ये. अगर इफ आप जितने ज्यादा स्मार्ट हो जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल हो उतने ज्यादा गवर्नमेंट का ऑप्शंस तो खुल ही जाते हैं. मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि मेरे को किंग मेकर बनना है, किंग नहीं बनना. तो हमें जितनी भी पार्टीज है सबको हम फंड करते रहेंगे, मैनेज करेंगे, जो इलेक्शन करना है. अब सीट पे नहीं बैठना, उसमें बहुत लफड़े हैं, लंबा अपना बिजनेस चलाते हैं. तो मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देती हूँ. मैं ऑब्वियसली आज पूरा दिन होंगी. एवरीवन ओके विद हिंदी और इंग्लिश? Either's okay? Okay. I'll give you context. मैं आज भी होंगी. कल मैं आपके बच्चों के साथ 5 घंटे का एक वर्कशॉप भी करूंगी उनको कुछ चीजें सिखाने के लिए. सो होपफुली आपको एक अच्छा कल सरप्राइज मिलेगा जो वो काम करके आएंगे. एज समवन जिसको पढ़ाई का बहुत शौक है, जिसको कॉलेज का बहुत शौक है, जिसको जेन्युइनली डिग्री मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, बस पढ़ने का और चीजें सीखने का बहुत शौक है. मुझे लगता है कॉलेज हमें अच्छे से प्रिपेयर लाइफ के लिए नहीं करता. एंड वेंचर बिल्डिंग स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आज देने वाली हूँ किस पर्सपेक्टिव से. तो आपने अभी तो इतने देर में सुना हमारा फिलॉसफी क्या है, हमारा हम कैसे करते हैं ये सब चीजें. थोड़ा थोड़ा मैं वो आपको बताऊंगी, बट उससे ज्यादा आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेंस ऑफ कि आने वाले टाइम में एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों के बारे में कैसे सोचना भी चाहिए कि हमें उनको कैसा फ्यूचर देना है, जो मैंने इतने सालों की रिसर्च करके समझा है अबाउट लाइफ. हम वेंचर बिल्डिंग पर इसलिए इतना फोकस करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लाइफ के बारे में एसेंशियल स्किल्स जो है सीखना, वेदर पर्सनैलिटी बेसिस या प्रोफेशनल बेसिस. 4 साल अगर आपने अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया है तो वो सीख के आपको बहुत सॉलिड तरीके से आ जाती है क्योंकि आपका दिमाग ही खुल जाता है उस तरह से. कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ किस तरह की. और अगर आप सोचो तो ये हर तरह के रोल में यूज होती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में यूज हो रही है या आप किसी टॉप कंपनी में काम कर रहे हो या आप अपना बिजनेस संभाल रहे हो या आप किसी और का बिजनेस लेकर उसको आगे लेकर चल रहे हो. ये 5 स्किल्स लाइफ में हर इंसान को, वेदर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो या आप रिलेशनशिप संभाल रहे हो, आनी चाहिए. एंड टेल मी अगर आपको इनमें से कोई भी एक स्किल है जो लगता है आप एज अडल्ट्स आज भी सीख रहे हो ये स्किल्स. पहली सेल्स और मार्केटिंग. अब जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं माने, जैसे अब हमें पता है ये बच्चा सेल्स पे बहुत अच्छा है कि कन्विंस करके ले ही आया आपको, ये बेच तो लेगा, बेच के ले आए. तो हमें ये पता है कि बच्चे सेल्स में अच्छे हैं. अगर इतनी मुश्किल से माँ बाप को मना के ले आए हैं इतना दूर, तो सेल्स तो आती है उनको, अपनी बात मनवा सकते हैं, जो बहुत जरूरी स्किल है लाइफ लॉन्ग. मार्केट करना अपने आप को, कैसे प्रेजेंट करना है. वो ऐसी रो पिट तो नहीं चुके होंगे कि
यही जाना और हम रीजन भी नहीं देंगे, रीजन भी दिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे, तो मार्केटिंग भी कुछ ना कुछ इंटुइटिवली तो आ ही रही है उनको करनी। ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कुछ भी करो, घर पे डिनर होस्ट करना है या शादी करनी है या बिजनेस संभालना है या किसी एग्जाम की तैयारी करनी है या किसी और ने हमें प्रोजेक्ट दे रखा है, हमारे बॉस ने, मैनेजर ने, वो संभालना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस, उसमें लोगों को कैसे मैनेज करना है वो सब भी आना चाहिए। सप्लाई चेन, नेगोशिएशंस, वेंडर मैनेजमेंट, अगेन एसेंशियल स्किल्स। हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब लोग अप्लाई तो करते ही हैं ये चीजें। लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, टीम मैनेजमेंट, जितना अच्छे से आप लोगों को हैंडल कर सकते हो और उनके साथ एज अ टीम काम कर सकते हो, अपने काम करवा सकते हो, एज अ लीडर शो अप कर सकते हो, उतने ही अच्छा आपका काम होता है। वेदर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो या नहीं, लेकिन आपका काम हो रहा है तो आप अच्छे लीडर हो। दूसरा फंड रेजिंग, चाहे खुद, और मैं आपको बहुत सारे आज एग्जांपल्स दूंगी कि हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों ने किस किस अलग अलग क्रिएटिव तरह से फंड रेजिंग किया। बट अगर आपको कोई भी काम करना है, पैसा लगना है उसके लिए या रिसोर्सेज लगेंगे, तो या आपने फ्री में रिसोर्सेज अरेंज करे या किसी ने आप पे इन्वेस्ट कर दिया या आपको कोई ग्रांट मिल गया, तो ये सब चीजें भी हर एक को आना जरूरी है। अब अगर हम 1 मिनट सोच के देखें, ये ऐसी कोई स्किल नहीं है कि सिर्फ 18 साल के बच्चे सीखते हैं। हम 30 पे भी बहुत सारी है जिसमें मैं बेटर एंड बेटर करती जा रही हूँ। आई एम श्योर 50 साल पे भी अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो ये कोई ना कोई ये स्किल्स रोज अपनी लाइफ में अप्लाई कर ही रहे हैं। तो ये तो एसेंशियल लाइफ स्किल्स ही हो गई। सॉरी तो हम अपने बच्चों को 4 बिजनेस बिल्डिंग स्प्रिंट्स से ये सब स्किल्स सिखाते हैं। पहला, वो एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करते हैं, which is, and मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, I'm just setting context here। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मतलब हम उनको मैन्युफैक्चरर्स और सप्लाई अरेंज करके देते हैं प्रोडक्ट्स की, जिसमें वो वेबसाइट बनाना सीखते हैं, ऑफलाइन सेल्स करना सीखते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखते हैं, और जिससे वो अपने बिजनेसेस बनाते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही एज अ टीम उनका गोल सेट होता है कि वो 10 लाख रुपीस का रेवेन्यू करेंगे। The slides need to be updated. There are 2 slides that are missed. Can you just refresh them, maybe? So, ये वो पहले सेमेस्टर में ही सीखते हैं ना। अगर आप 1 सेकेंड के लिए ये सोचो कि इन 6 months जो आपका बच्चा है वो आके बोल रहा है एज अ टीम हमने 10 लाख रुपए कमाए हैं, कितना ना सुना होगा उन्होंने, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी उन्होंने उस चीज को लेके, कितने लोगों को मनाया होगा, समझाया होगा, गलतियां कितनी करी होंगी टू गेट टू दैट स्टेज ऑल्सो, और कितना इमोशनल रेजिलियंस और लीडरशिप उसमें बिल्ड करा होगा इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑल ऑफ दिस। ऑफ कोर्स थ्योरी क्लासेस होंगी, मार्केटिंग की थ्योरी क्लास होगी, फाइनेंस की होगी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की होगी, इन सबकी थ्योरी क्लासेस तो होंगी, लेकिन वो क्लासरूम में होंगी। अप्लाइड में जो जो वो चीजें सीखेंगे और वो कितनी बारी लाइफ लॉन्ग यही सेम स्किल्स रिपीट में इम्प्लीमेंट करेंगे, बेटर होते जाएंगे, दैट्स गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट सेमेस्टर। साथ में वो AI प्रोडक्ट्स बनाने भी सीखेंगे अगले सेमेस्टर में। फिर वो एक YouTube चैनल या LinkedIn प्लेटफॉर्म पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना भी सीखेंगे। फिर वो अपना स्टार्टअप भी बनाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये पहला स्प्रिंट कर लेंगे उसी में उनका पहला स्टार्टअप बन जाएगा। बहुत बच्चे हैं जो फेल भी होते हैं उसमें, और उनकी भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी। बट पॉइंट इज कि अगर उसमें से 2 बच्चों ने अपना स्टार्टअप आगे कंटिन्यू कर लिया और बाकी फेल भी हो गए, दे वुड हैव लर्न्ड एसेंशियली करना क्या है और क्या नहीं है। फिर वो दोबारा कोशिश करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, और वो दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे, जो पिछली बारी की गलतियां थी उसको करेक्ट करेंगे, और ऐसे करके ये हमारा प्रोग्राम ही है। दैट्स जस्ट हाउ वी ऑपरेट। अब आई एम गोइंग टू गो बैक क्योंकि ये 2 स्लाइड्स अपडेट नहीं हुई थी, बट अभी मैंने आपको बताया जो 4 स्प्रिंट्स हैं, हम ये हाउ डू वी इंश्योर कि इतना आउटकम्स हम कैसे करते हैं। एंड ये ना आई एम शेयरिंग दिस कि दिस इज हाउ वी एट मेसा थिंक, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग भी घर जाएंगे, सोचेंगे, बच्चों से डिस्कस करेंगे, आपके बच्चे मेसा आएंगे, वो छुट्टियों के टाइम पे आपके पास आएंगे। सो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट education and their life in the future it little bit on these terms also consider क्योंकि ये ऐसी चीजें जो I'm sure my parents growing up did not consider, क्योंकि वो exposure नहीं होता था उस टाइम पे। So these are all from top research, best kind of outcomes across the world कि कैसे अपनी लाइफ के बारे में सोचना भी चाहिए। हम ये आउटकम बेस्ड प्रोग्राम डिजाइन कैसे करते हैं
कि जो फंडामेंटल्स वो क्लास में सीख रहे हैं और कॉन्टेक्स्ट और अप्लाइड स्किल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक आउटकम पे सीख रहे हैं. हम वो ये नहीं कर रहे उनको कि सीख कुछ लो, इम्प्लीमेंट कुछ और चीज होगी कि वो मैच ही ना कर पाए. एक हम उनको आउटकम या प्रोजेक्ट देते हैं जो वो पूरी तरह से ओन करते हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में वो उन स्किल्स को लगाना सीखते हैं. अगर आप सोचो तो लाइफ में हम भी नई चीजें ऐसे ही सीखते हैं ना. एक नई सिचुएशन आई है, अब हमें उस चीज को अच्छे से मैनेज करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना. वो सिचुएशन जब खत्म होती है तो नेक्स्ट सिचुएशन आती है. दैट्स द सेम लॉजिक. बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं क्योंकि दिमाग हमारा वैसे ही चलता है. ह्यूमन बींग्स का दिमाग ही वैसे चलता है कि अगर मैं कोई भी उनको चीज सिखा दूं जो वो अप्लाई ना कर पाए, आप हमें भी अगर कोई चीज आके बोल दे जो हम अप्लाई ना कर सके तो हमें याद भी नहीं रहेंगी वो चीजें. तो हम इंश्योर करते हैं कि वो एक कॉन्टेक्स्ट में उन चीजों को अप्लाई करें. स्लाइड्स का थोड़ा एनिमेशन इज मेस्ड अप बट बेयर विद मी. तो इससे व्हाट वी आर एबल टू डू इज एवरी किड हैज देयर ओन रेट ऑफ ग्रोथ और अपनी अपनी उनकी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होने लगती है. कि हो सकते हैं कोई बच्चे इंटुइटिवली मार्केटिंग या सेल्स पे बहुत अच्छे हैं और कोई और चीज है जिसमें अच्छे नहीं है बट ट्रेनिंग के साथ हो सकते हैं बिकॉज देयर माइंड वर्क्स लाइक दैट. We are able to identify that while they are doing the work and give them personalized focus. जैसे रिद्धि का एग्जाम्पल तारिक ने दिया. ओवर द लास्ट 1 year शी इज डन इनक्रेडिबली वेल. पर हमें ये भी पता है इन द लास्ट 1 year उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं. तो अब उसका ईयर 2 का जो पर्सनलाइज्ड पाथवे है उस हिसाब से प्लान आउट हो रहा है. और हर बच्चे का रेट ऑफ ग्रोथ भी अलग है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है. हर कोई अलग अलग चीजें अलग अलग स्पीड्स पे सीखता है. क्या प्रॉब्लम है अगर एक जने को 5 क्लासेस लग रही है एक चीज सीखने की या 5 मेंटरशिप सेशंस लग रहे हैं और किसी और को आधे घंटे में वो खत्म हो जाए, उसमें कोई इशू नहीं है. बट बिकॉज वो अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हम उस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उनको वो चीजें उनकी रेट ऑफ लर्निंग पे करवा सकते हैं. तीसरा है, और ये मेरे को ना कॉलेज स्कूल सिस्टम से बहुत बड़ा चिढ़ मचती है टू बी ऑनेस्ट. हम 6 सब्जेक्ट्स कर देते हैं कि 1 घंटा ये पढ़ो फिर फटाफट से उसको छोड़ दो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ, फिर उसको छोड़ दो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ. अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंसेनली अच्छा काम करें तो उनको उस पर इंसेनली ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा, अटेंशन भी देनी पड़ेगी. तो जब तक हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि कोई चीज़ का उनको शौक है या कोई चीज़ उनको इंटरेस्टिंग लग रही है, लेट देम गो डीप इन दैट. हो सकता है 6 महीने वो बाद आके बोले मैंने इतना स्टडी किया इसका और अब मुझे लगता है इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है. हम मिडिल क्लास स्कार्सिटी माइंडसेट ना उस चीज से डरते हैं कि 6 महीने वेस्ट हो गए या तुम 1 साल से यही चीज कर रहे हो, अब फिर कोई और चीज करोगे तो तुम्हारा ध्यान नहीं है. बट एक्चुअली वो गलत चीज है ही नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने या उस इंसान ने इतना डीप जाके उस चीज को इतना डिटेल में समझ के सीखा तो बहुत कुछ होगा. वो बस उस चीज को आगे परसू नहीं कर रहे, वो स्किल्स तो कहीं जा नहीं रही है. और जस्ट बिकॉज 6 महीने उन्होंने डाल दिया इसलिए हम कहते हैं अगले 6 साल भी उसी में डालो, पर वो तो गलत है. तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मेरे बच्चे आके 6 महीने बाद या 1 साल बाद आके बोले कि मैंने मैम 1 साल से मैं ये स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ. हो सकता है अपॉर्चुनिटी है नहीं है, बट आज टुडे आई एम 19 और मेरे को लाइफ के बारे में जितना मैं 18 की था या थी उससे ज्यादा पता है कंपैरेटिवली. तो नाउ माई थिंकिंग इज चेंजिंग अ लिटिल बिट. इज इट ओके इफ आई चेंज? क्या प्रॉब्लम है उसमें? और अगर कॉलेज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि स्किल सेट तो है, स्किल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंक्रीज हो ही रही है. बट वी वांट कि वो चीजें करे जिससे वो बहुत एंजॉय भी कर पाए और एक्साइटेड भी हो, क्योंकि बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है. आई एम नॉट सेइंग कि अगर हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे देंगे वो चीजें करे जो वो एंजॉय करे या वो एक्साइटेड हो तो उनका ईयर ईजी होगा. मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ अगले 6 महीने बहुत हार्ड होने वाले हैं उनके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ही इतना अलग है इस प्रोग्राम का. ऐसा हो सकता है और मेरे बच्चों के साथ ये हुआ है कि रात को वो फोन करे आपको वो रोते हुए कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे से नहीं हो रहा, बहुत प्रेशर है, मैं नहीं संभाल पा रहा. अगले दिन फोन करके बोले अरे नहीं पीजी में हमने फिगर आउट कर लिया क्या प्रॉब्लम थी मेरे बिजनेस में और वो सॉल्व हो गया. ये चीजें होंगी, बट जब हमें पता है कि ये चीजें होंगी और लाइफ इन जनरल हार्ड है तो हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज क्यों ना दें जिससे वो हार्ड चीजों में भी मजे कर पाए. और मैं अपने हर बच्चे को बोलती हूँ बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है. एटलीस्ट वो चीजें करें जिसमें वो प्रोसेस को भी एंजॉय कर पाए, जिससे आउटकम तो अच्छा हम इंश्योर कर ही लेंगे, बट वो जो 6 महीने काम कर रहे हैं उसको वो इतना एंजॉय कंफर्टेबल. ओके,
वो इतना एंजॉय कर रही है उसको कि आउटपुट भी वैसा है। आई थिंक मैं अपने काम पे इसलिए बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये चीज़ें, मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके बारे में, मैं पूरा दिन रात यही इसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ। और मैं यहाँ आने से पहले भी यही चीज़ करती थी, मेरे लिए गोल ही यही है कि पढ़ाई अच्छी कैसे होनी है। मतलब मैं मॉम ही वैसी बनना चाहती हूँ जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, मस्ती करें, हर रूम में जाके अपने आप फिगर आउट कर ले चीज़ें। ट्रेडिशनल स्कूलिंग में मेरा ही विश्वास नहीं है, जबकि मैंने तो टॉप किया है। एंड आई हैव ऑलवेज प्लेड द गेम ऑफ स्कूल वेरी वेल। स्कूल में टीचर्स फेवरेट, टीचर्स पेट, हर कंपटीशन में जीत लिया, नेशनल्स कर लिए, ओलंपियाड्स जीत लिए। बट बहुत आसान है स्कूल का गेम जीतना, क्योंकि आपको बड़ों की बात माननी है, जो उन्होंने बोला वो करना है। डजंट मीन वो राइट है। तो माइट इज वेल मैं अपने बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दूं जिससे वो आगे के 30 साल 40 साल जब आप मैं ना भी हो उनके साथ, तो भी अपने लिए सही डिसीजंस ले पाए, और इन चीजों से वो ले सकते हैं। तीसरा है कि रियल वर्ल्ड में, हम सबको ये पता है कि रियल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं टफ है, प्रॉब्लम्स होंगी। मैं भी आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती कि अगले 4 सालों में या पूरी लाइफ आपके बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, होंगी ही, वो तो लाइफ का पार्ट है। बट क्योंकि हमारा फोकस और माइंडसेट ही ऐसा है, हम अपने बच्चों के लिए इतना सेफ स्पेस बना लेते हैं कि वो फेल बहुत बारी होते हैं, बट वो ये भी सीख लेते हैं कि फेल होने के बाद कैसे हमें सक्सेसफुल होना है, उसके बाद उठना कैसे है वापस। तो इसलिए इवन तो आप सब बच्चों से जब मिलेंगे यू रियलाइज कि वो मैच्योरिटी लेवल उनका इतना ज्यादा बढ़ जाता है विदाउट लूजिंग द फन, द चाइल्ड लाइक स्पार्क, क्योंकि वो ट्रॉमेटिक वे में नहीं कर रहे कि फेल हो गए और अब लाइफ में क्या होगा। ठीक है ना, फेल मैं नहीं हुआ हूँ, ये बिजनेस नहीं चला है, दूसरा करते हैं, क्या बड़ी बात है। या ये प्रोजेक्ट में हमने उतना अच्छा नहीं करा जितना हम शायद कर सकते थे, क्योंकि तब हमें उतना ही पता था, हमें और पता है, हम और बेटर कर लेंगे। तो they start building those tools and frameworks, and this is all part of the venture building program curriculum process that I'm talking about. बट मैं आपके साथ ये माइंडसेट्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, एंड आई वुड लव कि आप लोग भी कुछ थोड़ा सोचने शुरू करें इन चीज़ों पे, क्योंकि ये बहुत इजी है। अगर आप एक्चुअली अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल्स फ्रेमवर्क्स खुद भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करें तो ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। और मतलब तीसरा या फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एट अ वेरी यंग एज उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम एक्सटर्नल नहीं होता, उनको मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बच्चों को, अगर आप ट्रेडिशनल स्कूलिंग देखें, हमारा ट्रेडिशनल कल्चर देखें, तो हम उनको कहते हैं कि हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है रादर देन आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। अगर आज मेरे 19 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड बच्चे ये बोल सकते हैं ना, मैम आप सही नहीं बोल रहे हो, मैं आपसे अग्री नहीं करता और मैं इस चीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ, और कोई लड़ाई वाली बात ही नहीं है, तो आप सोचो वो कितने कॉन्फिडेंट बिल्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना जानते हैं। उनको ये पता है कि डिसएग्री करने से कोई कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं वाली है, क्योंकि हमारा गोल सबका सेम है। वो अपने ऊपर उनका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दे विल नॉट वेट कि कोई और उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो करेंगे जो उनके लिए एक्चुअली सही है रादर देन बाकी लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए। तो अगर आप सोचो, ये थोड़े टफ पिल्स होते हैं फॉलो करने के लिए, और मुश्किल हमारे लिए ज्यादा है एज एल्डर्स, क्योंकि हमें लगेगा हम बड़े, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। बट वो तो ये बोल रहे हैं कि आप हमें लॉजिक से एक्सप्लेन करो, हम आपकी बात मान लेंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी की भी बात मानने में, एज लॉन्ग एज इट्स लॉजिकल। तो मेहनत हमारी ज्यादा है एक्चुअली इस फ्रेमवर्क में। जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है वो बड़ों के लिए आसान कर देता है बच्चों को मैनेज करना, लेकिन वो ना बच्चों के लिए अच्छा है ना हमारे लिए अच्छा है। तो दिस इज कोर कि हम आउटकम बेस्ड कैसे करते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में 10 लाख का रेवेन्यू लेकर जाते हैं, उसके पीछे बहुत थॉट प्रोसेस जाता है। तो प्रोग्राम बनने से पहले ये माइंडसेट्स हमारा एज अ टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिजनेस बिल्डिंग जो लाइफ के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप सोचो स्पेशली जो लोग अपना कुछ भी काम कर रहे हैं या आप लीडरशिप रोल में हो, जैसे आप अपना प्रोजेक्ट तो संभाल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल रहे हो। और एक एंटरप्रेन्योर एंड ऑफ द डे कौन है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहा है और उसके लिए उसको पेमेंट मिल रही है, वो चाहे टॉप जॉब्स में मिले या अपनी कंपनी पे अपना नाम हो उसमें मिले या कंसल्टिंग करके मिले, आइडिया तो सेम ही है एंड ऑफ द डे। मैं आपको कुछ ये भी चीजें बताना चाहती हूँ जो हम नहीं करने वाले हैं। एंड काफी सारे पेरेंट्स से मेरी ये बात होती है कि अरे हमारे बच्चे ऐसे 18 इयर्स से बड़े हुए हैं, हमारे घर में ये सिस्टम चलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर सम रूल्स जो हमारे हैं जो हम नहीं करते हैं वेंचर बिल्डिंग के परसूट में। पहली बात तो हम ये बोलते ही नहीं है कि मिस्टेक्स कर दी तो कोई प्रॉब्लम हो गई या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। बहुत अच्छी बात है, करो मिस्टेक्स,
अच्छे से गलतियां करो, गलती नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हम इंट्यूटिवली क्या सोच रहे हैं और करेक्ट कैसे करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें जो नॉर्मल लग रहा है या डिफॉल्ट प्रोसेस है उसमें क्या सही है क्या गलत है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. माई किड्स जिनसे आप मिलोगे फर्स्ट विद इन ईयर एंड अ हाफ, उनको गलती करने में कोई टेंशन ही नहीं होती है, तो इसलिए वो गलतियां भी फटाफट से करते हैं और जल्दी जल्दी सीखते भी हैं. रूल्स कोई सीन ही नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर और कुछ बड़ा भी करना है लाइफ में, तो जिस चीज की प्लेबुक सेट हो गई तो वो तो फिर स्टैंडर्ड हो ही गया ना, फिर तो आप उसमें कुछ बड़ा नहीं कर सकते. तो हमारा भी रोल है कि हम कोई रूल्स नहीं सेट करते उनके लिए, हम गाइडेंसेस, प्लेबुक्स, कैपेबिलिटीज सेट करते हैं और हम उनको इनकरेज करते हैं कि रूल्स जो है फंडामेंटल्स को समझो एंड देन ब्रेक द रूल्स इन द राइट वे. प्रॉब्लम कब होती है? जब आइदर एक्सट्रीम हो जाए कि ना बच्चों के पास कोई कॉन्टेक्स्ट या लॉजिक हो कि व्हाट इज मॉरल और इमोरल, कि वो इतना रिबेलियस हो जाए कि किसी के हाथ ही ना आए. दूसरा, या ऐसा कि वो अपना दिमाग ही ना लगाए. वी हैव टू इंश्योर अ सेंटर पॉइंट वेयर दे नो बोथ साइड्स, एंड उसके लिए हमें उनको उतना फ्रीडम, उतना अकाउंटेबिलिटी देना बहुत जरूरी है. फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना अकाउंटेबिलिटी के प्रॉब्लम करता है. पर अगर मैंने उनको फ्रीडम दिया है कि आप रूल्स ब्रेक करो जाके, और उसके साथ उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं कि वो चाहे वो अपना बिजनेस है या वो अपने जूनियर्स को मेंटर कर रहे हैं या वो इंटर्नशिप्स पे हैं जहाँ पे उनका नाम भी लग रहा है, तो दे शो अप ऑल्सो विद दैट काइंड ऑफ सीरियसनेस एंड मैच्योरिटी. वी डोंट टेल देम what they need to do, especially they shouldn't wait for us. अगर उनको शाम को आइडिया आया है कोई कि ये काम करना है और ये मेरे बिजनेस के लिए सही है, तो फटाफट से एग्जीक्यूट करो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलती हो जाएगी ना, ठीक कर लेंगे, बिग डील. बट काम तो करो जाके. मतलब जरूरी नहीं है कि बड़ा ही कोई आके बोलेगा तो बड़ों को ही पता है. ऑनेस्टली हम लोगों को भी सब कुछ तो पता नहीं है लाइफ के बारे में. जितना पता है उतना हम इनको बता सकते हैं, बट आगे ये भी अपनी लाइफ फिगर आउट करेंगे. बहुत चीजें जो ये हमें सिखा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि दे डोंट वेट फॉर अस टू टेल देम व्हाट टू डू. वी डोंट आस्क देम टू लर्न थिंग्स जस्ट इन केस. कोई सीन ही नहीं है कि पढ़ लो कभी तो काम आ जाएगा. स्कूल में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि पढ़ लो कभी ना कभी तो काम आ जाएगा, बट जब काम आएगा तब पढ़ लेंगे ना. माई किड्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, क्योंकि उनको पता है कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, उनको पढ़ने से, एकेडमिक्स से, क्लासेस से, बुक्स से, म्यूजियम्स जाने से, कोर्सेज करने से इन द लास्ट 1.5 ईयर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची है. क्योंकि वो हम लोगों को भी देख रहे हैं कि अगर कोई चीज इनको नई इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखना है, तो उसको पढ़ लेते हैं. क्या प्रॉब्लम है? कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं. तो वी जस्ट बिल्ड दैट कल्चर वेयर वो चीज करो जो एकदम अप्लाई कर सकते हो अभी, जो रेलेवेंट हो, ताकि आपको वो चीजें याद रहे, वो स्किल्स आपकी बिल्ड हो. और जो चीज अभी लग रहा है अभी इतनी फायदे में नहीं आएंगी और नेक्स्ट ईयर आपको शायद हो सकता है काम आए, तो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी एक स्टूडेंट कोई है जिसको कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी, लेट्स से मार्केटिंग की कोई वर्कशॉप है, और कहता है भाई मेरे से नहीं होगी. आइडियली फर्स्ट 2 इयर्स में मैं हर बच्चे को बोलती हूँ अपने को एक्सपोज करो, एटलीस्ट एक बारी हर चीज ट्राई करो बिफोर यू इवन से नो टू एनीथिंग. सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट. तो लेट्स से उन्होंने कर लिया और मार्केटिंग की 10 वर्कशॉप्स है और उन्होंने 2 अटेंड कर ली, और उनको पता है कि अगली 8 वो अटेंड करते हैं, तो जो वो बिजनेस एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं उसमें उनको इतना फायदा नहीं होने वाला है अभी. डज इट मेक सेंस कि वो कंटिन्यू करें अटेंड करना? नो. लेट देम बिल्ड द बिजनेस. हो सकता है अगले सेमेस्टर में उनको मार्केटिंग का सपोर्ट लगे. वी हैव अ फैकल्टी एंड मेंटर्स, वो उनको 1-on-1 कोच कर देंगे सारी चीजों में, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज अप्लाइड हो गया ना सारी चीजें. इतना तो कोई टफ नहीं है. आई एम श्योर हम जितने भी लोग कॉलेजेस गए हैं, एग्जाम्स करे, हमने लास्ट मिनट क्रैम करके, डिग्री तो टफ नहीं है क्रॉस करना, बट एक्चुअली वो हमें याद कितना है वो सब चीजें टफ है. सो वी वांट टू इंश्योर ऑल ऑफ दैट. Finally, and this is a culture you will see across, आप अंकित से मिल चुके हो, whenever you meet Varun, Tariq, me, we're all very very clear. वो हमारी बात से इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हम बड़े हैं. अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं, it's our responsibility to apologize for it, not just like personally but also professionally. We can be wrong. Business में we can be wrong, right? कोई भी गलत हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो they don't listen to us just because हम बड़े हैं या हम authority figures हैं, but we also have to give them logic. जैसे अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वेंचर बिल्डिंग का, तो आई एम गिविंग यू आवर लॉजिक एंड आवर वे ऑफ थिंकिंग. आई एम नॉट आस्किंग यू ऑल्सो टू बिलीव मी जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ हम बहुत अच्छे हैं. यू हैव टू ऑल्सो टेस्ट इट आउट फॉर योर सेल्फ, राइट, कि हम सोचते कैसे हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि और इन सब चीज़ों से ना एक्चुअली क्या होता है
And what we've also learned over the year, not just the last 1 year, but in my experience also over the last 10-15 years, is that kids start to respect you and see you with better relationships. Today, my kids can come to me any time of the day, any day of the week, or any mess up that they have done. उनको ये डर लगता है कि डांट पड़ने वाली है, अब बैंड बजा देंगी मैम, वो तो होता है, बट वो ये नहीं होता कि वो कोई चीज़ छुपा रहे हैं मुझसे. Because I've built that trust and relationship with them, and across the board, that's how we see it as a team. And I can tell you, जितने भी parents ऐसे rules follow करके, even if they're 18, 20, 25, whatever that age, if you start implementing these, आप भी अपने बच्चों के साथ वैसा relationship build कर लोगे कि as they grow up, become adults, they start seeing you as their friends that they can really trust and come home to. और ये essential skills जो है मैंने जितनी families भी देखी हैं, जिन पेरेंट्स का ऐसा माइंडसेट कहीं ना कहीं रहता है, they always end up having a better relationship with their kids. And I'm saying all of this because if we follow all of this at MESA as a concept, it's because venture building या जो हम program outcomes create कर रहे हैं ना, it's not just about वो क्या business बनाने वाले हैं, but अगर बेकार से लोग होंगे तो क्या ही business बनाएंगे, कौन उनको दुनिया में trust करेगा, और हम अपना नाम कैसे लगाएंगे उनके पीछे. मैं मतलब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मैं नहीं चाहती एसहोल बच्चे मेरे कॉलेज से बाहर निकले. मैं चाहती हूँ टॉप लोग, क्वालिटी पीपल, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, कर तो लेंगे. इफ दे आर हियर, उनका कोहॉर्ट ऐसा है, सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे, मुझे उसकी टेंशन ही नहीं है. बट मेरे को लोग भी एकदम टॉप नॉच चाहिए कि अगर वो उस कमरे में नहीं है और 100 लोग हैं और उनका नाम निकलता है तो एक एक जना बोले कि भाई बंदा टॉप का है, बहुत डिपेंडेबल है, बहुत ट्रस्टवर्दी है. एंड ऑफ द डे अगर कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता तो पैसा देगा उसको, आप लोग दोगे. जितने भी लोग हैं बहुत पैसा कमाते हैं, अगर आप सोचो भी वो वही है ना जिनको दुनिया ट्रस्ट करती है पैसा संभालने को. तो ट्रस्ट कब होता है? जब पर्सनैलिटी अच्छी होगी, इंसान अच्छे होंगे, माइंडसेट ही सब कुछ हो गया ना. और ये माइंडसेट हमारा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी वांट आवर किड्स टू शो अप एज. तो मैंने आपको 4 बिजनेस बिल्डिंग स्प्रिंट्स बताए जिसमें हम ये सब चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होने वाला है कि दे विल चूज एन आइडिया. हमारे पास रिपोजिटरी ऑफ आइडियाज है, कुछ बच्चे ऑलरेडी आइडियाज पे वर्क कर रहे हैं. 2-3 टीम्स हैं जो पहले वैम्स में आई, उन्होंने अपने बिजनेसेस लॉन्च भी कर दिए हैं बाय द वे, और दे विल सेल टू कस्टमर्स. उनका गोल है 10 लाख का रेवेन्यू करना. अब इसमें मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट भी दूंगी कि फाइनेंसेस हम कैसे अरेंज करेंगे, आप लोगों से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ एक्सेट्रा. बट जस्ट फॉर यू टू नो, 0 to 1 पूरा कि 0 से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, उससे क्रिएटिवली एक बिजनेस बिल्ड करना, उसको एक आउटकम पे लेके जाना, वो पूरा सीखेंगे. उनको डेडिकेटेड सपोर्ट मिलेगा और उनको कैपिटल मिलेगा. आई एम श्योर, एंड मैं हर पेरेंट को अंडर ग्रेजुएट पे स्पेशली ये बोलती हूँ, इवन इफ आप लोगों के पास पैसा है उनको सपोर्ट करने को मत करना, क्योंकि ये टाइम है कि वो सीखें कि पैसे की वैल्यू क्या है, उसको कमाना कैसे है. हम अपने एंड से जब वो ये चीज स्टार्ट करते हैं, हम उनको एक कैपिटल फंड देते हैं, वो पिच करते हैं अपना आइडिया. हम मतलब पूरी टीम है जो उनको सपोर्ट करती है आइडिया ढूंढने में, मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने में, सप्लायर्स ढूंढने में. वो पिच करते हैं, हम उनको एक अमाउंट देते हैं पूरा वर्किंग कैपिटल करके, बिजनेस का यूनिट इकोनॉमिक्स सब कुछ समझा के, जिससे वो अपना फर्स्ट स्टॉक लेते हैं, वेबसाइट बिल्ड करते हैं, जो जो एक्सपेंसेस उनको बिजनेस सेटअप करने के लिए चाहिए होता है वो सब करते हैं. फिर उनको इंटरेस्ट फ्री डेट मिलता है अगर उनको और पैसा चाहिए. बट अदरवाइज हम उनको ज्यादा से, मैंने अगर उनको 50,000 रुपीज दिया है स्टार्ट करने को, तो उस पैसे को अगले 2 हफ्ते के लिए घुमाना कैसे है, उससे पैसा कैसे कमाना है, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट कैसे करना है. जो लोग अच्छे आउटकम्स आते जाते हैं, जैसे फर्स्ट 2 वीक्स में वेबसाइट बिल्ड हो गई, वेबसाइट का पिच किया, टॉप वेबसाइट को एक मॉनेटरी अमाउंट मिलता है जो वो दे कीप री इन्वेस्टिंग इन देयर बिजनेस ऑल्सो दैट वे. In the first semester itself, we want them to learn how to create money, how to arrange for money. Grants हो सकते हैं कुछ cases में, वो investors को pitch करेंगे तो उनको हो सकता है उसमें मिल जाए. So we make sure that we give them the money, ऐसे handout में नहीं, but they have to really work for that money, ताकि उनको उस पैसे की importance और value समझ आने लगे. अगर आप लोग दोगे तो उनको दिमाग में तो है कि मिल ही जाएगा. We don't want that to happen. 8 weeks में this is just a sample कि 8 weeks में क्या होने वाला है उनका. As soon as they come in August, and some of them have already started working on this, like I said.
बट ओवरऑल ये होगा कि वो एक बिजनेस आइडिया सिक्योर करेंगे, सप्लायर्स से बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे सारा, अपने चैनल सेटअप करेंगे, ऑनलाइन स्टोर सेट करेंगे, ऑफलाइन पार्टनरशिप्स करने वाले हैं, साथ में सोशल मीडिया पे लॉन्च कैसे करना है, उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, उसकी प्रॉपर मेंटरशिप होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगी, हम फ्ली मार्केट्स करते हैं, वो मॉल्स में जाके बेचते हैं. एंड आई कैन टेल यू लास्ट ईयर दिस ईयर जब हमने समर स्कूल प्रोग्राम किया था, स्पेशली एट दिस एज बच्चों ने ना तो सुना नहीं होता, तो जब पहले दिन वो फ्ली मार्केट कर दिया, पहला घंटा, जब 50 लोगों के पास वो जाके बोलते हैं हमारा परफ्यूम खरीद लो, या हमारी ज्वेलरी खरीद लो, या हमारी कुकीज खरीद लो, हमारा कपड़ा खरीद लो, या नोटबुक खरीद लो, कहते हैं अरे परेशान मत करो, तंग मत करो. ये होने वाला है और इसी से वो सीखेंगे, इसी से मैच्योरिटी आने वाली है, क्योंकि उनको समझ आएगा कि वैल्यू क्या है और कोई पैसे एक चीज बेचने के लिए कितनी मेहनत लगती है, उस चीज में कितना एफर्ट लगता है. और जब आप दूसरी तरफ आते हो, व्हाट आई हैव आल्सो सीन इज के एक दो बारी फ्ली मार्केट्स करने के बाद उनका बिहेवियर बाकी लोगों की तरफ जब वो बाहर जाते हैं बहुत चेंज होने लगता है. तो अभी 2 महीने पहले हमारी फ्ली मार्केट हुई थी समर स्कूल के लिए, 9 से 12 के बच्चे आए थे 2 वीक्स के प्रोग्राम के लिए, और मतलब एक्सपेंसिव प्रोग्राम तो था ही, उसमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं थी, 2 वीक्स का प्रोग्राम था अक्रॉस द कंट्री. टॉप फैमिली बिजनेस, आई वुड से 80% फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड के बच्चे आए, 20% कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के बच्चे भी आए. उन लोगों ने तो कभी ना सुना ही नहीं, मतलब वो, और एक बच्चा आके मुझे बोलता है फॉर कॉन्टेक्स्ट उनका उड़ीसा में 4 माइंस हैं, 10 स्कूल्स उनके अपने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सीएम का पैसा, मतलब दैट कॉन्टेक्स्ट. उस बच्चे ने लाख रुपए की बर्बरी की शर्ट पहनी हुई है फ्ली मार्केट के एक दिन के बाद, और अगले दिन रो रहा है कि मेरे को तो 6000 का मैं बेच नहीं पाया, मैं तो इतने महंगे कपड़े पहन कैसे रहूं. 10th का बच्चा है. आप एक बार ये सोचो कि वो नेक्स्ट टाइम कैसे करने वाले. एक हफ्ते बाद जब फ्ली मार्केट दोबारा हुई, क्योंकि उनके केस में 2 बारी हुई थी, तो वहां पे से मॉल्स में होता है ना, काफी छोटे छोटे बच्चे बाहर के लोग आ जाते हैं कि हमें खाना खिला दो, ये कर दो, वो कर दो. इन सब बच्चों ने, इन 100 बच्चों ने मिलकर उन सबका ध्यान भी रखा है, क्योंकि सडनली उनको रियलाइज हो गया कि एक्चुअली लाइफ बहुत अलग है. और ये 9th 10th 11th 12th के बच्चे हैं, और ये 18 ईयर ओल्ड के साथ भी यही सिस्टम होता है कि वो पूरा उनका ध्यान भी उनको रखना आ जाता है, वो मैच्योरिटी आ जाती है कि कैसे कैसे चल रहा है. और ये समय 1 साल में क्या क्या हो रहा है, सिर्फ उसकी बात करें, उसके आगे क्या चीजें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल. तो इसलिए मैं कह रही थी कि फर्स्ट ईयर बहुत टफ है उनके लिए, क्योंकि लर्निंग कर्व ही इतना ज्यादा है, और हम उनको ऑनेस्टली एज अडल्ट ट्रीट करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं, बट ऐसे ट्रीट करते हैं कि अडल्ट्स हैं या अडल्ट्स बनने वाले हैं, तो उसमें हम कैसे उनको बिल्ड करें. फाइनली 8 to 9 वीक्स बाद वो इन्वेस्टर्स को पिच भी करते हैं अपना बिजनेस आइडिया. जिनके बिजनेसेस इन्वेस्टर रेडी होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है, और ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हुआ है. कुछ बिजनेसेस इन्वेस्टर रेडी नहीं होते बट बिजनेस अच्छे हैं तो वो बिजनेस कंटिन्यू कर लेते हैं. कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर जैसे 9th वीक पे पिच कर लिया, पूरा एक्सपीरियंस किया, और रियलाइज हुआ कि बहुत मिस्टेक्स करी हमने ये बिजनेसेस चूज करने में, बट वी हैव लर्नड अ लॉट. तो अब हम ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम और चीजें एक्सपेरिमेंट करेंगे. वंस वी हैव अ क्लियर आइडिया कि हमें आगे क्या बिल्ड करना है, लेट अस डू दैट, एंड आई अगेन शेयर दोज एग्जांपल्स. सो कॉन्सेप्चुअली जस्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगेन द सेम थिंग, दे विल पिक अ प्रोडक्ट, निगोशिएट करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्स करेंगे, और पूरा अपना एंड टू एंड बिजनेस एक बिल्ड करेंगे एज अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट. उसमें से वो जो भी चीजें कमाते हैं, they earn 10 lakh, 15 lakh, 5 lakh, 2 lakh, they get to keep all that money, we don't take anything from them. अब होता, I've told you mindset, now let me just talk about some frameworks जैसे हम उनको इस पूरे प्रोसेस में सपोर्ट भी करते हैं. पहली चीज तो उनको जैसे हम लोग तो है ही सपोर्ट करने के लिए. किसी ने होम डेकोर का बिजनेस किया तो होम डेकोर के एग्जिस्टिंग फाउंडर्स आके उनको गाइड करते हैं, मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक सपोर्ट उनको मिलता है. कोई प्रोटीन में बिल्ड कर रहा है तो उनको वो सपोर्ट मिल गया, कोई खाकरा ब्रांड बिल्ड कर रहा है तो उनको उस कैटेगरी का सपोर्ट मिल गया. एक्चुअल फाउंडर्स जो अपने डे टू डे में बिजनेसेस रन कर रहे हैं वो आके या ऑनलाइन डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर इन द कंट्री, उनको 1-on-1 कोचिंग भी देते हैं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी देते हैं. ये सब बिफोर दे इवन पिच टू अस, ताकि वो मार्केट रिसर्च अच्छे से करे, वो कस्टमर्स इंटरव्यू कैसे करना है, क्या करना है. फिर उनको विद इन आवर टीम हैंड्स ऑन सपोर्ट मिलता है, वेबसाइट बिल्ड कैसे होनी है, उनकी वर्कशॉप्स होंगी, प्रॉपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे होना है. तो वो 1-on-1 भी होता है, वो वर्कशॉप बेसिस पे भी होता है.
दूसरा वी हैव अप टू 5 करोड़ का स्टार्टअप फंड ऑलरेडी, जिसमें हम इक्विटी नहीं लेते. अगर किसी का भी बिजनेस है जो ऐसे स्टेज पे है कि उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पुश चाहिए, कि सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, देन वी पुट इन द मनी एंड लेट देम स्केल इट अप. और जब वो बिजनेसेस ऐसे स्केल पे पहुंच जाते हैं कि अब ये एकदम मार्केट में जाने के लिए रेडी हैं, तो हम वी हैव समथिंग कॉल्ड मेसा स्टार्टअप लैब, जो यू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट का कंबाइंड पूरा सब कुछ वो संभालते हैं. सो देन दे मूव ऑन टू द बिग लीग, और उसमें जाके 5 करोड़ फंडिंग, 15 करोड़ फंडिंग ऑफ द बिजनेस, ये सब आउटकम्स आते हैं. शार्क टैंक के लिए हमारे कुछ स्टार्टअप्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आइडियावाज की एप्लीकेशंस जा चुकी हैं ऑलरेडी. तो ये सब चीजें फिर वो नेक्स्ट स्टेजेस पे होती है. तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास करने की. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इतना बोल रही हूँ आपको कि उसके लिए टफ होएगा, रेजिलियंस बिल्ड होएगी, लाइफ स्किल्स सीखेंगे, इमोशनली भी बहुत टफ होता है. तो हमारे एग्जीक्यूटिव कोचिंग भी है, थेरेपिस्ट इज ऑन कॉल. एग्जीक्यूटिव कोचिंग इज मैंडेटरी फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट. एग्जीक्यूटिव कोचिंग यूजुअली आप मिडिल करियर के ऑनवर्ड्स करते हो कि आपका कोई कोच है. ऐसा नहीं है कि मेरे को कोचिंग की नहीं जरूरत. अगर मैं 600 बच्चों का ध्यान कर रही हूँ तो किसी को तो मेरा भी ध्यान करना है, मेरे को भी बताना है कि मैं गलत किस चीज में कर रही हूँ. यूजुअली इतना जल्दी कहीं पे भी आप देख लो इन द वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव कोचिंग स्टार्ट नहीं होती. इन आवर केस क्योंकि हमारे बच्चे कर ही इतना अलग कुछ रहे हैं, वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिव कोचिंग वेरी अर्ली, जिसमें वो उनको सेल्फ रेगुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फैमिली में अगर कोई इशू चल रहा है, को फाउंडर के साथ इशू चल रहा है, कॉन्फिडेंस का इशू है, फाइनेंशियल है, व्हाटएवर इट इज, अपना माइंडसेट क्लैरिटी के लिए हेल्प करते हैं कि अपने बेस्ट पोटेंशियल पे वर्क करें. This happens in group sessions also and one-on-one also. So for example, one of the sessions that's coming up is money management. अब अगर मैं पैसों की बात नहीं करूंगी तो मैं कैसे बिजनेस स्कूल रन करूँ. बट हर कोई अलग अलग डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, डिफरेंट फाइनेंशियल माइंडसेट्स से भी है. कुछ बच्चे हैं जो इतना खुला उनको घर पे पैसा मिला है कि उनको पैसे की वैल्यू ही नहीं है कि कहाँ बचाना है कहाँ नहीं करना. आई हैव टू होल्ड देम बैक. कुछ है जिनका आइडिया है कि टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन बस पैसा बच जाना चाहिए और वो उसमें गवा रहे हैं. सो आई हैव टू पुश देम आल्सो. तो वी डूइंग मनी मैनेजमेंट आल्सो, कि दे स्टार्ट बिकमिंग कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मनी एंड वर्किंग वेल विद मनी. उनका गिल्ट बेस्ड या फियर बेस्ड कोई रिलेशनशिप ही ना हो. जब तक वो नहीं होगा अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी कैसे बनेंगे, पैसा संभालेंगे, आ भी जाएगा तो संभालेंगे कैसे. So that's another thing that we do in executive coaching. So you will see that it's professionally तो हो ही रहा है, but वो professionally unlock करने के लिए there's a lot of personal work that needs to go in. वरना वो professional unlock नहीं होगा. अगर वो professional सिर्फ theory में unlock करने तो 50-60 books हैं, 4-5 YouTube channels हैं, उनकी list public है, वो पढ़ लो और हो जाएगा. But अगर वो ना होता तो सब कुछ हो चुका होता. The unlock is actually all of this 90-95% of personal work that we do with the kids. कुछ एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ आपको. द्युम्ना जो फर्स्ट है, आई गो इन ऑर्डर. द्युम्ना सेकंड टाइम फाउंडर है, फर्स्ट टाइम शार्क टैंक पे आ चुकी है. ब्राउन यूनिवर्सिटी गई थी अपने अंडरग्रेड के लिए, 1 साल वहाँ पे गई, ड्रॉप आउट करा, वापस आ गई मेसा में. पहला स्टार्टअप नमिता ठाकुर ने फंड किया था शार्क टैंक पे. पिछले साल बिफोर कमिंग टू मेसा उसके को फाउंडर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई और बहुत स्टूपिड रीजन की वजह से उसने स्टार्टअप छोड़ दिया. उसी का स्टार्टअप, उसी ने पैसा लगाया, उसी का सब कुछ, और उसने स्टार्टअप छोड़ दिया कि नहीं तू ले ले. वो यहाँ पे आई और उसने फाउंड्री करके एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, किशोर बियानी जिन्होंने बिग बाजार बनाया था और निखिल कामत का, जिसमें वो इंडिया भर से ऑलमोस्ट 2000-2500 एप्लीकेशंस में से उन्होंने 30 लोगों को चूज किया. उन 30 लोग 3 महीने के लिए उनके अलीबाग में जो फार्म हाउस है वहां पे रुके और उन्होंने बिजनेसेस बनाए. द्युम्ना सबसे छोटी है वहां पे. लोग वहां पे हैं जिनको जो 25 इयर्स के भी हैं, 40 इयर्स के भी है, 50 इयर्स के भी है. द्युम्ना इज 18. तो पहला 2 हफ्ते आई एम वेरी यंग, वो लोग मेरे को वैल्यू नहीं करें. पहली चीज वो 2500 लोग इंडिया भर की एप्लीकेशंस को क्रॉस करके टॉप 30 में है. उसमें भी मैं बहुत छोटी हूँ, उनको लग रहा है मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे को वैल्यू ही नहीं करते, मेरे को बहुत डर लग रहा है. तो उसकी एग्जीक्यूटिव कोचिंग उन चीजों की भी हुई. 1-on-1 जब वो अलीबाग में थी, उसने 2 हफ्ते पहले 12 करोड़ रुपए अपने स्टार्टअप के लिए रेज करे. और उसकी कमिटमेंट कितनी थी? 72 करोड़ कमिट हुए थे. उसमें से उसको सिर्फ चाहिए 12 करोड़ थे, बट 72 करोड़ तक मार्केट उस पर लगाने को रेडी था. एंड शी हैड द करेज टू से नो, मेरे को नहीं चाहिए ये चीजें, तो इट डजंट मैटर, क्योंकि इतना टाइम उसने ये सब चीजें सीखी.
उसकी 1-on-1 कोचिंग चल रही है। तो जब मैं बॉम्बे में होती हूँ वो 1-on-1 मुझसे मिलती है, वी स्पेंड 2-3 days टुगेदर कि यूनिट इकोनॉमिक्स पे क्या करना है, मार्केटिंग पे क्या करना है एक्सेट्रा, एंड वी बिल्ड इट आउट। फाउंड्री निखिल कामत और किशोर बियानी जी का जो है सुपर यू उसी का पार्ट है, क्योंकि निकुंज किशोर बियानी जी के नेफ्यू हैं। सूर्या अगेन 18 year old, बिफोर कमिंग टू मेसा उसके पास 2 या 3 पैटर्न्स ऑलरेडी थे। उसको फिजिक्स बहुत पसंद है, तो उसने नॉइज कैंसलेशन का खुद से समझा, यूट्यूब पे जाके खुद से सीखा, उसका कोई कोर्स नहीं होता। और उसने एक डिवाइस बनाई है, एक बॉक्स है, जैसे अगर ये बॉक्स है, आपने नॉइज कैंसलेशन ईयरफोन्स देखे, तो बॉक्स है उसने जो बनाया, अगर मैं यहाँ पे रख के ऑन कर दूं तो मेरे आसपास नॉइज कैंसलेशन का एक हेलो क्रिएट हो जाएगा। उसका AI सॉफ्टवेयर है, उसने हार्डवेयर पूरा यहाँ पे आके बनाया, हमने उसको एक हार्डवेयर लैब के साथ पार्टनर करवा के दिया, उसने पूरा हार्डवेयर बनाया। एंटरप्रेन्योर फर्स्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सेलरेटर है, वो $250,000 उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और ये 6 महीने पहले की बात है। जो वो ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं उसका अगेन जर्नी पर्सनलाइज्ड है। जतिन एक रनिंग एप्लीकेशन बना रहा है, उसका आइडिया है कि बाहर के देशों में जो रनिंग एप्स हैं, तो यूरोप में जाओ, US में जाओ, वो बने ही वॉकिंग के लिए, बने ही पब्लिक एक्सेस के लिए। इंडिया तो ऐसा है नहीं, पर यहाँ पे लोग बाहर तो निकलते हैं, वॉक भी करते हैं, रन भी करते हैं। तो क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इंडिया या ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज या ऐसी कंट्रीज जो वॉकवेज या पाथवेज पब्लिक एक्सेस के लिए है ही नहीं, उनके लिए हम ईजी कर दें। तो वो उसका एक ऐप बना रहा है। ऐप स्टोर अमेरिका में चलता है, तो जब जब उसकी ऐप क्रैश होती है, सुबह 4 बजे उसका ईमेल आ रहा है कि ऐप क्रैश हुई, मैं ये चीजें फिक्स कर रहा हूँ, उतनी जिम्मेदारी के साथ उठकर, विच मीन्स जल्दी सोकर, अपना काम पे फोकस करके, बाकी चीजें स्किप करके वो अपना बिजनेस बना रहा है। कैंपस फंड नाम का एक एक्सेलरेटर है जिसने सॉफ्ट इंटरेस्ट दे दिया है, उन्होंने कुछ गोल्स सेट करे हैं इसके लिए, अगर उसको वो गोल्स वो हिट करता है तो उसमें वो इन्वेस्ट कर देंगे। आराध्य ने पिछले जो ये फर्स्ट सेमेस्टर में हम वो वेंचर बिल्डिंग वाला करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का, खाखरा का बिजनेस स्टार्ट किया अपने को फाउंडर के साथ। खाखरा आपको पता है कितने का होता है? सस्ता होता है, कुछ बिग कुछ है ही नहीं ना, मैन्युफैक्चरर से कर रहे हो। उन्होंने समझा कि साउथ इंडिया में इतने गुजराती मारवाड़ी क्राउड है, लेकिन कॉइन खाखरा जैसा कुछ नहीं है जो इजी हो खाने में, बड़े खाखरा है सारे। तो उन्होंने गुजरात से, ये डॉक्टर्स हैं उसके पेरेंट्स, गुजरात से मैन्युफैक्चरर ढूंढा, और यहाँ पे AI यूज करके पिन कोड्स निकालते हैं बैंगलोर में, कौन से पिन कोड में गुजराती या मारवाड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है, उस पिन कोड में जाकर जितने भी ये फरसान की दुकानें हैं, जनरल ट्रेड स्टोर्स हैं, पटेल स्टोर्स हैं, वहां पे जाके 100 रुपए का खाखरा ले लो, अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे। ये करते आए हैं। एक बार वाइल्ड गेस करना, उन्होंने 1 साल में कितना बिजनेस कर लिया होगा? 1 करोड़ का, 1 करोड़। दुबई भेज रहे हैं, US भेज रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। पहले जब उन्होंने शुरू किया था तो जिस मैन्युफैक्चरर के साथ स्टार्ट किया था तो 4 महीने की शेल्फ लाइफ थी, इंटरनेशनल मतलब जा नहीं सकता था, सिर्फ इंडिया में। तो एक को फाउंडर ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई पे ध्यान दिया, अब 9 महीनों की शेल्फ लाइफ हो गई है, तो US अनलॉक हो सकता है उनके लिए। CMPL करके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन प्राइवेट लेबलिंग का एग्जीबिशन होता है, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है इस कैटेगरी का, अभी बॉम्बे में हुआ था। वहाँ पे सबसे छोटे थे एज ग्रुप में। जब उन्होंने अप्लाई किया था कि हमें भी एग्जीबिशन करना है, सब करना है, तो हमें कॉल आया कि ये क्या बच्चे मजाक कर रहे हैं आपका नाम लेके, ये क्या तरीका। तो मैंने गारंटी दी कि नहीं सीरियस बिजनेस है, ये करेंगे हम लोग होंगे। मैं भी थी वहाँ पे, प्लेट्स मेरे घर से गए थे उनके लिए सैम्पलिंग करने के लिए। उनको पीछे का कोई स्टॉल मिला था कि बच्चे हैं क्या करेंगे। उस ऑर्गेनाइजर ने उनको आके बोला अगली बारी थोड़ा आगे का मिलेगा, क्योंकि अकेले थे। मतलब जियो कन्वेंशन सेंटर इतना बड़ा 3 फ्लोर का एग्जीबिशन है, अकेले थे जिनके पास कॉइन खाखरा है, और वहां से उन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स भी निकाल लिए। अब आप सोचो यार इतने छोटे से बच्चे हैं, ऑनलाइन भी बेच रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे। मैम हमें धंधा करना है, ये बिजनेस ऑनलाइन नहीं बिक सकता, हमें क्या करना, कंटेंट का परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके कोई मतलब नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई इशू थोड़ी ना, सब ऑनलाइन बिजनेस करें, जरूरी थोड़ी ना ये लोग भी करें। अब इन्होंने ये करा है ऑफलाइन किलर वर्क। निकुंज सुपर यू का जो फाउंडर है, इनसे मिलने गया इवेंट पे, और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी। निकुंज कह रहा था हम इतना क्रैक नहीं कर पाए हैं एट स्केल, तो अरियत और आराध्य ने उसको पिच किया कि आप हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट दे दो बैंगलोर का, वो तो हम कर ही लेंगे, उसके आगे ऑफलाइन आपसे हम बात करते हैं, फिर आगे क्या करेंगे। उनकी अब वो बात चल रही है। 18 साल का लड़का है, 600 करोड़ की कंपनी है दूसरे जने की, उसको जाके बोल रहा है आपसे नहीं हो रहा, हम करके देते हैं।
और वो भी कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। अगेन 18-year-olds, 19-year-olds। देवनंदा है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो बिजनेस की अच्छा नहीं चला, टीम के साथ वर्क नहीं कर पाई, प्रॉब्लम्स नहीं समझ आ रही थी। अराउंड दिसंबर उसने करा कि भाई मेरे को फैशन में ही बिजनेस करना है क्योंकि मुझे उसी का शौक है। हर एक ने उसको बोला कि फैशन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी नहीं है, कुछ है ही नहीं, मतलब कितना कॉपी पेस्ट चल रहा है। शी डिडंट लिसन एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अराउंड फेब उसको एक अच्छा आइडिया समझ आ गया था, जनवरी में ही उसने कुछ टेस्ट कर लिए थे। 5'8", 5'9" है उसकी हाइट। तो उसने रियलाइज किया कि इंडिया में लेडीज की जो हाइट है वो शॉर्ट रहती है ऑन एवरेज, तो जो लंबी लड़की है ना, हम लोगों को अपनी जीन्स जब हम लेते हैं या स्कर्ट्स लेते हैं, या तो बहुत छोटी होती है या हम बहुत लंबी लेते हैं और फिर अपनी साइज के लिए फिट कराते हैं, तो प्रोसेस बड़ा लंबा है और इंडियन बॉडी टाइप्स के हिसाब से नहीं है, वो वेस्टर्न बॉडी टाइप्स के हिसाब से, और हम फिटिंग करा रहे होते हैं उसकी। तो उसने 250 लड़कियों से रैंडम रोड्स पे जा जाके रोक के लंबी लड़की दिखी, जाके बात करी, उनके फोन नंबर्स लिए, उनकी प्रॉब्लम समझी, और उसने एक जीन्स का बिजनेस शुरू किया, मैन्युफैक्चरर ढूंढा, सब कुछ किया। अभी वेबसाइट नहीं है, अभी सेल्स नहीं करी है, जो बस जिन लोगों से मिल के प्री ऑर्डर्स पे 3.5 लाख का काम कर लिया जीन्स बेच के। अब मैं आप सोचोगे कि फैशन है, पॉलिटिक्स का क्या लेना देना। ईरान का वॉर हुआ, एलपीजी क्राइसिस चल रही थी, मैन्युफैक्चरर्स के पास गैस ही नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए, कस्टमर्स गुस्सा कि हमने तो एडवांस में ऑर्डर दे रखा है, तुम्हारा प्रोडक्ट का है। कस्टमर्स को भी मैनेज किया, नए सप्लायर्स भी ढूंढे, इंटरनेशनल सप्लायर भी ढूंढा उस 3 हफ्ते के पीरियड में, और डिजाइन्स भी निकाल दिए, और अब अपना और बिजनेस आगे कंटिन्यू कर रही है। मैं जियोपॉलिटिक्स नहीं सिखा पाती उसको वेंचर बिल्डिंग में, मतलब कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती थी ना ये चीज। ये तो रियल उस टाइम पे उसको पता चल रहा है कि जीन्स नहीं आ सकती क्योंकि गैस नहीं है, गैस के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, तो जो उसने मार्जिन रखा था वो बचा नहीं, कस्टमर्स यहाँ चिल्ला रहे हैं कि हमने पैसा दे रखा है। तो उस टाइम पे एज एन 18-year-old कस्टमर्स को भी खुश किया, मैन्युफैक्चरर भी और ढूंढे, अपना बिजनेस भी और स्ट्रॉन्ग किया। इनमें से कोई भी चीज जो है हम क्लास में सिर्फ बैठ के नहीं करा सकते। अब ये तो है जिनके बहुत इंसेन सक्सेस स्टोरीज है, मैं आपको कुछ और भी चीजें बताती हूँ। आदित्य हाँ जी, या श्योर सर, मतलब अगेन नो रूल्स, फुल रेस्ट, नो स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं है। आदित्य कोई आइडिया नहीं है बिजनेस का कि क्या बिल्ड करना चाहिए, रिलैक्स, नो स्ट्रेस। बिजनेस का कि क्या बिल्ड करना चाहिए, उसको ये पता है कि वो 4 या 5 चीजें हैं जिसमें बहुत अच्छा है। एक तो लोग उसकी बात मानते हैं, अगर 100 लोग हैं और वो कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो अपने 5-6 लोग ढूंढ के प्रोजेक्ट अपना क्लोज करा पाते हैं। दूसरा, वो नॉन टेक्निकल है, मतलब वो कोडिंग नहीं करता, वो एआई पे डिसेंट है, बट वो प्रोडक्ट्स नहीं बिल्ड करता, बट उसका विजन बहुत अच्छा है। वो प्रॉब्लम्स के एसेंशियल सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं कि इंसान को ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन क्या चाहिए, अब कैसे देना है वो टीम फिगर आउट करेगी। तो एंटरप्रेन्योर फंड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसको सिलेक्ट कर लिया है कि भाई अगले 3 महीने, अगले 6 महीने हमारे साथ स्पेंड करो, हम तुम्हें 3.5 लाख रुपए देंगे पर 3 मंथ्स। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया आ गया इन दैट टाइम, हम तुम्हें को फाउंडर भी देंगे, टीम भी देंगे, वर्क स्पेस भी देंगे। अगर तुम्हारे पास अच्छा आइडिया आ गया तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। उसको पैसे मिल रहे हैं ये सोचने के कि क्या बिजनेस बनाना चाहिए, क्योंकि एज अ पर्सन उन्होंने बोला इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। 18 साल का बच्चा है, गूगल के, IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशंस के बाकी लोग हैं उसके कोहॉर्ट में, उसके एज में काफी बड़े। ऋषि के, और मैं ना ये आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्टार्टअप फंडिंग एग्जांपल्स हैं ये बहुत अलग तरह के एग्जांपल्स हैं, तो हर तरह का सक्सेस पॉसिबल है। ऋषि के चद्दर बेच के 12 लाख रुपए कमाए हैं 3 महीने में, 3-4 महीने में, चद्दरें बेच के। चद्दर में क्या अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी नहीं है। हमने भी यही सोचा था, वरुण और मैंने उसको मना किया इनिशियली कि चद्दर नहीं करनी। उसने बोला भाई मेरा इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस है मेरी फैमिली का, मेरे को तो कुछ इंटीरियर्स नहीं करना है, लॉन्ग टर्म मेरा गोल है बढ़िया सा फर्नीचर बेचना, अभी कैसे करना है बता दो। तो हमने चद्दर से स्टार्ट किया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कुछ टेस्ट रन करे, पानीपत में उसने कोई सप्लायर ढूंढा, अपना कोई डिजाइन निकाला पिंटरेस्ट से, ट्रेंड स्पॉटिंग, ट्रेंड रिसर्च सब करके कि हम ये बेचते हैं। जोया अख्तर जो फरहान अख्तर की सिस्टर है, पहले 2 हफ्ते में उनका परचेज आ गया, इन्फ्लुएंसर्स खरीद रहे क्योंकि उसका डिजाइन ऐसा निकला है कि वो इंडिया में आपको वैसा डिजाइन नहीं मिलेगा, एंड इट्स ग्रेट डिजाइन, वेरी वेरी गुड क्वालिटी।
और 68% मार्जिन पे वो बेच रहा है। 15,000 रुपए लगा के उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, घर से एक पैसा नहीं लिया। अभी यूएस होकर आया है, हमारे इमर्जन पे जो तारीख बता रहे थे, पूरा खर्चा खुद किया है। 4 महीने में हम लोग चाइना जा रहे हैं अगले इमर्जन के लिए, खुद पैसे दे रहा है उसका। वॉशरूम कहाँ है? गो राइट एंड देन टेक अ राइट। तो और इसको हर इन्वेस्टर ने बोला है कि बढ़िया बिजनेस नहीं है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब 18 साल का बच्चा अच्छा बिजनेस करे, इनिशियली तो बहुत लगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों अच्छा बिजनेस नहीं है। ओवर टाइम रियलाइज करने लगा कि मैं इन्वेस्टर्स ही गलत पूछ रहा हूँ, ये बिजनेस है ही नहीं इन्वेस्टर वाला, ये बिजनेस है वर्किंग कैपिटल वाला। तो मुझे वो समझना है, नहीं भी डाले पैसे तो पैसा कमा ही रहा है बिजनेस। अभी अगर मैंने 12 लाख का काम कर लिया, मैं 1 लाख खुद का भी और डालता तो मेरा कैपिटल बढ़ जाता है, तो मैं उसको मैनेज करूंगा। जरूरत क्या है इन्वेस्टमेंट लेने की, मेरा बिजनेस तो अभी भी सक्सेसफुल है। मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रही हूँ क्योंकि सक्सेस के भी बहुत डेफिनेशन होते हैं। हमें लगता है कि बस फंडिंग की न्यूज आ गई तो वो सक्सेस है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बिजनेस के लिए क्या सही है और आपके लिए क्या सही है वो रियलाइज करना भी बहुत जरूरी है। काव्या है, बहुत क्रिएटिव लड़की है, आर्ट में बहुत अच्छी है, फैशन में बहुत अच्छी है, ग्रेट टेस्ट। जैसे वो लोग होते हैं जो हमेशा उनका हाथ लगाए और वो सोना हो जाता है, सुंदर हो जाती है चीजें, उसका वो वाला है। और टेक्निकल में बहुत अच्छी है। कुछ महीने पहले उसने रियलाइज किया कि वो जैसे कॉलेज में है, शी इज वेरी स्पिरिचुअल, धार्मिक बहुत है, तो जैन लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है जिससे वो अपने धर्म से जुड़े रहे। 3-4 दिन लगा के पूरी एप्लीकेशन बना दी। हर रोज आपको जैन धर्म का एक मैसेज आएगा, पेड एप्लीकेशन है, $5 पर मंथ की है, ऑनलाइन डाल दिया, हर महीने उससे उसको पैसा आता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। पूरा 1 साल लगा दिया कि मेरे को करना क्या है लाइफ में, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2 महीने पहले एक प्रोजेक्ट पे मेरे साथ एक क्लाइंट के लिए काम कर रही थी, उनके लिए ब्रांड स्ट्रैटेजी बना रही थी, और उसको रियलाइज हुआ कि ये चीज मैं प्रोडक्ट में बना सकती हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे इंटरेस्ट एरिया को कंबाइन कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है फाउंडर्स के लिए। तो ये कंज्यूमर्स को तो छोड़ो, ये इसमें पैसा बहुत है। इसने 2 हफ्ते लगा के अपना पूरा प्रोडक्ट बनाया। 2-3 हमने टेस्ट करे ब्रांड्स के साथ इंटरनली कि कैसे करना है, क्या करना है। इनसेन रिजल्ट। लिंक्डइन पे पोस्ट किया उसने, 3-4 दिन लगातार पोस्ट किया अपनी स्टोरी, अपनी कॉन्सेप्ट के बारे में, और एक वेट लिस्ट डाल दी कि दिस इज व्हाट आई एम बिल्डिंग। जो अर्ली, बहुत अर्ली है, किसी को डिजाइन पार्टनर के फॉर्म में आना है कि नहीं। मिनिमलिस्ट आपने नाम सुना है? उसके फाउंडर ने रिप्लाई किया मेरे को टेस्ट करना है। शी इज 19, शी हैज पेड क्लाइंट्स इन 3 weeks, 4 weeks, 4 हफ्ते हुए हैं इस बात को करे हुए, और उसके पास 8-9 पेड क्लाइंट्स हैं। अभी प्रोडक्ट रेडी नहीं है, लोग पे करने को रेडी है कि हम फिगर आउट कर लेंगे साथ साथ, बट हमें ये स्किल सेट चाहिए, और ये ग्लोबल स्किल सेट है जिसको चाहिए। आई एम शेयरिंग इसकी स्टोरी क्योंकि पिछले 1 साल में शी डिड सो मच, बट उसके लिए वो इनसेन आउटकम नहीं आ रहा था। एंड इट्स ओके कि ना आए, क्योंकि जो उसने 50 चीजें टेस्ट करी, ट्राई करी, हर चीज से उसका स्किल बिल्ड होता गया। जो चीजें नहीं भी चली उससे भी उसका स्किल बिल्ड होता गया कि अब वो ऐसी स्टेट में है कि उसके पास इतना इंसेन प्रोडक्ट है जो कोई और पहुंच ही नहीं सकता। ऐसा प्रोडक्ट वही बना सकता है जो बहुत टेस्टफुल हो, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, और जिसको टेक्निकल नॉलेज बहुत हो, और जिसको थ्योरेटिकल फंडामेंटल नॉलेज ब्रांड्स की बहुत ज्यादा। गिनती के लोग हैं ऐसे, और यंग लोग तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट या एक्सपोजर ही नहीं है। इसको है, इसने 3 दिन में लगा के जैसे ही आइडिया आया, क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज, स्किल सेट्स, नो हाउ सब कुछ था, 3 दिन लगाया, अपनी एप्लीकेशन बनाई, रेडी टू लॉन्च। अत्रीजा फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, उसको अपने डैड का बिजनेस ही आगे लेके जाना है। वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पैलेट ट्रक्स की, जो ये बड़े फैक्ट्रीज होती है ना, आपको सामान एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाना, तो उसका ट्रक होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ड्रॉप आउट है बाय द वे, 2 साल इंजीनियरिंग करी, फिर ड्रॉप किया, फिर मैसा आया, और 6 महीने उसको लगे एक डील क्रैक करने में। उसने पहली डील जो क्रैक करी है पिछले 1 साल में 1.2 करोड़ की क्रैक करी है स्विगी के साथ। उसका जितना भी हम ये इतनी बातें करें ना, AI, क्लाउड टेक, ये सब उसने, ही लाइक्स इट, उसने टूल्स भी बनाया, बट उसको मैन्युफैक्चरिंग से प्यार है। मतलब वो फैक्ट्री पे सो सकता है, फैक्ट्री फ्लोर पे, क्योंकि वो बड़ा ही ऐसे हुआ है। बचपन में उसके पापा को भी बहुत शौक था, तो टॉयज वगैरह के बजाय मशीन्स आती थी, खोल के देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसको मशीन्स से प्यार है। उसको मशीन्स में ही आगे कुछ करना है, मैन्युफैक्चरिंग में ही आगे कुछ करना है। उसने पिछला 1 साल रिसर्च ही इस इंडस्ट्री पे करी है पूरी, और भी चीजें करी है, बट जब ये करता है तो उसकी आंखें खिल जाती है। मतलब वो ऐसे वाला है कि उसको प्यार है मशीन्स से इतना ज्यादा। 6 महीने लगाए, सेल्स सीखी, एक B2B सेल्स के मेंटर है, उनके साथ 1-on-1s करे,
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करी, पर्सनल स्टाइल पे काम किया कि मैं अपने बाल कैसे सेट करूँ, कपड़ों को कैसे सेट करना है क्योंकि मेरे को प्रेजेंट करना है इतने बड़े लोगों के सामने। 1.2 करोड़ की डील क्रैक करी है पिछले 6 महीने के मेहनत के बाद। कॉन्फिडेंस सोचो उस बच्चे का क्या होगा। अगेन ग्रेट आउटकम। फंडिंग नहीं होनी चाहिए ऐसे बिजनेस की, कोई मतलब ही नहीं बनता। इस बिजनेस को इन्वेस्टर्स बहुत अलग तरह के चाहिए। अगर कभी उसको IPO करना है या M&A करना है तो वो एक अलग तरह की बात है। अभी जो नॉर्मल चल रहा है वो सब नहीं है, बट ये भी तो बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो उसको पता है कि अगले 4 साल में अगर वो यही मेहनत करे तो वो अपने डैड का बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है एक्चुअली। इशिका बना रही है तीखी एंड को, अगेन फैशन ब्रांड। पहली 2 कलेक्शंस सोल्ड आउट थी। यंग किड जेनजी फैशन इंडियन टेक्सटाइल जो आज का क्रेज है। पहली 2 कलेक्शंस बहुत अच्छी थी, सेल आउट करी। थर्ड कलेक्शन में उन्होंने पूरा AI डेटा ट्रेंड सब यूज करके फैशन डिजाइन सीख ली पिछले 2 महीनों में। ऑनलाइन एक डिजाइन इंटर्न हायर कर लिया निफ्ट से कि हमारी बुक्स बनाओ, मैन्युफैक्चरर्स से बात कर रहे हैं। और अब जो कलेक्शन आ रही है मैं दिवाली में पहनने को बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनसेन कलेक्शन है, ऐसी इंडिया में नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि उन्होंने खुद से बनाई है। पहली 2 कलेक्शंस जो सब चल रहा था वो किया, डिसेंटली गुड, बट आउटलायर आउटकम नहीं था। अभी भी आउटलायर आउटकम आया नहीं है, बट इनपुट सही जा रहा है उनका। वो सोच रहे हैं कि अलग क्या है मार्केट में, मार्केट एक्सेप्ट क्या करेगा, इसमें हम इनोवेट क्या कर सकते हैं ताकि हम कुछ जेन्युइनली यूनिक करें। अब जो मैं आपको 5 एग्जांपल्स दे रही हूँ उनके पास कोई बिजनेस नहीं है अभी बिल्ड करने को, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वर्क इन प्रोग्रेस है और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे अलग अलग स्टेजेस पे। तो आरव ने पिछले 1 साल में, रॉक म्यूजिशियन है, बहुत बढ़िया गिटारिस्ट है, संडे को उसका परफॉर्मेंस भी होने वाला है। उसने एक मोबिलिटी ऐप बनाई, रनिंग, गेमिंग, कैप्चर टेरिटरी के कॉन्सेप्ट से, कि कुछ स्पोर्ट्स फिटनेस में करता है, उसको शौक है उस चीज़ का। कल मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हुई है फाइनली, एंड उससे बोले मैम इट्स बिन 1 ईयर, मैं ये बिल्ड कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बट मुझे इसमें ना बहुत ज़्यादा अभी फ्यूचर नहीं लग रहा, हो सकता है बाद में हो, बट मेरे को अभी और 6 मंथ्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। म्यूजिक, AI, इनमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट इसमें उतनी एक्साइटमेंट अब नहीं हो रही है, कैसे करना है। द प्रॉब्लम है कि जब एक्साइटमेंट नहीं होती 2 रीजन से नहीं होती। एक तो आप थक चुके होते हो और आपको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिख रही, दूसरा आप लेजी हो रहे हो, क्या आप आलस कर रहे हो। मेरे बच्चे आलस नहीं करते क्योंकि वो, उनका कोहॉर्ट ऐसा है ना, हर कोई कुछ ना कुछ इतना कर रहा है, तो उनके पास खुद का इतना मोटिवेशन है कुछ अच्छा करने को। इसके केस में एक्चुअली सही डिसीजन है कि वो जो एप्लीकेशन बनाना था उसको भी पार्क करे और थोड़ा टाइम लेके इंडस्ट्री समझे जो करनी है। तो अभी तक के लिए उसको म्यूजिक में बिल्ड करना, और उसको पूरी गाइडेंस मिल रही है कि इंडस्ट्री समझनी कैसे है, क्या क्या डायरेक्शंस में स्टडी करो, किन किन से बात करनी है, कैसे टेस्ट करने हैं और आइडियाज। तो ये अनदर वर्क इन प्रोग्रेस है। निमित ने मखाना ब्रांड स्टार्ट किया था अभी कुछ महीने पहले, मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ लिए, सब कुछ कर लिया, एंड में जाके रियलाइज हुआ कि मखाना में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो बस नया नया है तो एक्साइटिंग लग रहा है, बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब वो 2 नए डायरेक्शंस में सर्च कर रहा है, उसको कुछ मैन्युफैक्चरर्स भी मिल गए हैं, उसने कुछ टेस्ट भी कर लिए कि ये कैटेगरीज में चल रहे हैं। अभी वो अपना सप्लाई चेन फिक्स करने की कोशिश कर रहा है बिफोर ही लॉन्चेस। तो अगेन जस्ट बिकॉज पहला बिजनेस नहीं वर्क किया या काम करने के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं हो रहा, तो कोई भी बच्चा छोड़ नहीं रहा उसको, क्योंकि उनको वो माहौल ही वैसा मिल रहा है कि बिग डील ना, वर्क नहीं किया, लेट्स मूव ऑन, अगली चीज करते हैं। अगेन तरुण बहुत बढ़िया एनिमेशन स्टूडियो बना रहा है, जो आप ये एनिमेटेड वीडियोस वगैरह सब देखते हो उसका स्टूडियो बना रहा है। इस समय 4 लाख रुपए महीना कमाता है ऑलरेडी सर्विसिंग करके, कि ब्रांड उसको आके बोलता है कि हमें ये एनिमेशन करके दो। अगर वो 4 लाख कमा रहा है तो उसका खर्चा 1 से 1.25 लाख का है, तो वो बचा भी अच्छे से रहा है, टीम वगैरह का एक्सक्लूड करके ये सब चीजें। अभी उसका गोल है अगले 1 साल में इसको प्रोडक्टाइज करके इसका टूल बना देना, प्रोडक्ट बना देना, कि सर्विसिंग ही ना करनी पड़े। अभी कैसे बनेगा हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के पास क्लियर बिजनेस आउटकम हो। जिनके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं वो भी बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, क्योंकि बिजनेस है ना, तो पार्ट एंड पार्सल है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दूसरी आ जाएगी। ये वाले वो है जो उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं अभी। अरिहंत का फैमिली बिजनेस है, अकेला लड़का है, आयरन की माइनिंग है, 4-5 शोरूम है, किसी ये क्या नाम है होंडा के सैंड माइनिंग का काम है, अकेला लड़का है, भिलाई के रीजन से आता है।
अब उसको पता है कि 4 साल बाद भी उसने घर ही जाना है, क्योंकि आसपास दूर दूर परिवार में कोई और लड़का है ही नहीं। वो यहाँ पे आया कि भाई मेरे को कॉलेज तो मेरे को अपने आप को ग्रो करने के लिए करना है सब। अब उसकी कोचिंग क्या चल रही है कि माइनिंग इंडस्ट्री में क्या इनोवेशन है ग्लोबली, उसको स्टडी करते हैं। क्यों इतने सालों से वो माइनिंग में है, काम कर रहे हैं, पर इसमें क्या इनोवेशन है। उसको टीम मैनेज करनी नहीं आती अभी बिल्कुल भी, कि अगर वो ऑन द फ्लोर नहीं है तो चोरी भी होती है, काम भी रुक जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसकी कोचिंग ही अलग सेंस में चल रही है कि भाई तुम्हारा जो अपना बिजनेस है उसको स्केल करो, बट तुम एज एन एंटरप्रेन्योर तो अच्छे बनो कि तुम्हें फाइनेंस की बुक्स सारी समझनी आती हो, तुम्हें ग्रांट्स हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, वो सब करने आ जाए। तुम अपने एज अ फाउंडर तुम अपना इतना लीडरशिप स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर तुम एक फोन भी कर लो सुबह के आधे घंटे के लिए तो तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा कहीं पे भी हो दुनिया में चल जाना चाहिए, वरना तो आप क्या ही बिजनेस कर रहे हो ना फिर। तो उसकी अलग ही कोचिंग चल रही है, इस सबसे रिलेटेड नहीं, बट बढ़िया आउटकम है। अगर उसके बिजनेस में अगले 1 साल में 5 या 10% भी ग्रोथ आ जाए, इतने से भी, तो भी करोड़ों का काम है जो बढ़ रहा है एंड वैल्यूएबल स्किल है, लाइफ लॉन्ग रहेगी उसके पास। निर्मय ने एक शेपवेयर का ब्रांड शुरू किया, जिम बॉय है, प्रॉपर दिल्ली का जिम करता हुआ लड़का, जैसे आपने रॉकी रंधावा को देखा होगा। उसने शेपवेयर बनाया कि फॉर मेन, सिर्फ औरतों के लिए शेपवेयर ऑलरेडी होता है, उसने मेन के लिए बनाया कि आप ऑफिस में जाते हो, पेट पूरा बाहर होता है, उसमें थोड़ा सा आपको फिट होना चाहिए, ये सब चीजें काफी अच्छा सेल किया। 50-60 हजार का बिजनेस कर लिया जिम में ही, अपने जो यहाँ पे जिम है उन लोगों से बात कर करके, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स भी ढूंढ लिए, वो सप्लाई भी कर लिया, बट वो खुश नहीं है फैब्रिक से, कि अभी वो कन्विंस्ड नहीं है कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। और इंडिया में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, हमें लगता है अगले 4 से 5 सालों में होने वाला है। ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बड़ा है। अभी भारत टेक्स गए थे हम 2-3 हफ्ते पहले, इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन है दिल्ली में, वहां पे भी उसको एक मैन्युफैक्चरर मिला जो उस लाइन में काम करता है, बट उतना नहीं है जो जिससे वो खुश हो जाए। तो अब उसने इंटरनेशनल कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, चाइना में कुछ मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने हैं। अभी जब हम चाइना जाएंगे तो वहाँ पे जाके देखेगा कि अभी हमें अवेलेबिलिटी भी है प्रोडक्ट की या नहीं। अगर अब नहीं होएगी तो फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ करके सेट करना पड़ेगा, और वो उस पर काम कर रहे हैं, समझने में कि आदमियों को क्या चाहिए फिटेड कपड़ों में जिसमें वो बेटर लगे। मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ना, हर कोई, एवरीवन गोज थ्रू दिस प्रोसेस इन बिजनेस बिल्डिंग। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चीजें स्किप हो जाए तो दे विल नॉट लर्न। हम हैंड आउट नहीं कर सकते ये स्किल्स। जो ये चीजें इस टाइम में सीख रहे हैं ना, उसी से इनका मेंटल रेजिलियंस, फाउंडर स्ट्रेंथ, माइंडसेट बिल्ड होता है गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। आप सोचो इतना बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन है, जितने बच्चे हैं पहले 1 घंटे में तो हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा। बोला भाई बाल थोड़े सेट करो, कपड़े ठीक से पहनो, उनको लगे तो सही कि सीरियस हो, बच्चे बन के जाओगे तो बच्चा ही ट्रीट करने वाले। तो वो सब ये चीजें तक सीख रहे हैं कि कैसे करना है, हमें प्रेजेंट कैसे करना है। पहले तो इतने बड़े अब इंटरनेशनल एक्सपो है, वहां पे जाके बोलते हैं अरे 50 पीस का एमओक्यू हम नहीं हैंडल करेंगे। कहते मैम हमारे पास पैसे थोड़ी ना कि हम 5000 का ले लें। बोले क्या प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंटली जाके बोलो कि पापा का बिजनेस है, 5000 मिनिमम हमारा स्टार्टिंग है, एक्सप्लेन तो करो कि क्या है क्या नहीं। उन्होंने वो करना शुरू किया। तो अगर वो नहीं भी कर सकते अभी उस चीज को एक्सेस, तो इंडस्ट्री तो समझी कैसी है क्या है, और ऐसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना, इतने तरह के लोगों से मिलना, सब कुछ जो वो सीख रहे हैं, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप, आई डोंट थिंक नाउ आई नीड टू टेल यू कि थ्रू दिस प्रोसेस वो लाइफ स्किल्स कैसे सीखने वाले हैं। सो कुछ की प्रिंसिपल्स है जो ओवरऑल एंड यूजफुल आई थिंक फॉर यू ऑल ऑल्सो, जो हमें लगता है कि बहुत जरूरी होने वाले हैं इनके लिए। पहली चीज है, हम इनको इनकरेज करते हैं जल्दी फेल करो, आगे फेल करो। फेल फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर मैंने आज फेल किया है तो मैं फेल ऐसे करूं कि मैंने कुछ सीखा हो। अगर मैंने कुछ भी नहीं सीखा और फिर भी फेल किया तो क्या पॉइंट है। तो बैड फेलियर नहीं चाहिए हमें, फेलिंग फॉरवर्ड चाहिए एंड हमें जल्दी जल्दी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमने 3-4 चीजें कर ली और फिर हम 3 महीने तक आराम कर रहे हैं। बार बार करना है हमें, बार बार ऐसी पोजीशन में होना है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, कोई चीज पे गलत कर रहे हैं और फिर कुछ आगे बढ़ रहे हैं। पहले साल में हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं कि वो हर चीज ट्राई करे, एक्सपोजर हो उनको हर चीज का। क्योंकि 17 साल पे ऑनेस्टली मुझे भी लगता है किसको पता है किसको क्या करना है। मेरे को तो 30s में भी नहीं पता कि लाइफ में 50s की होंगी तो क्या करना है, किसी को भी नहीं पता होता ऑनेस्टली। तो आई थिंक हमें ये क्वेश्चन तो पूछना छोड़ देना चाहिए बच्चों से, बट एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर में क्या करना है,
इट्स एन ईजियर गोल फॉर देम टू हैव। और क्या हम ये स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग कुछ भी करना हो उनको पता है कि कैसे उसको एक्टिवेट करना है। तो ईयर 1 हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं। ईयर 2 जैसे तारिक बोल रहे थे, हर बच्चे का पर्सनलाइज पाथवे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब वो किस लेवल का पर्सनलाइजेशन है डिपेंड्स कि वो कितना चाह रहे हैं और हमें उनकी कैपेसिटी कितनी लग रही है। कुछ हो सकता है कि 3rd सेमेस्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है, 4th में बढ़ जाए। कुछ बच्चों का ये भी होगा कि 3rd सेमेस्टर में बहुत कैपेसिटी है, 4th सेमेस्टर में फॉर व्हाटएवर रीजन, फैमिली, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, वर्क या इंटरेस्ट ऑल्सो, 4th में हमें इतना प्रेशर नहीं लेना, तो हम उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी इतनी बड़ी टीम है जो बच्चों के साथ पर्सनली काम कर सकती है। वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू डू दैट। तीसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिविजुअली उनको क्या चाहिए उसके हिसाब से अप्लाइड एंड नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वेंचर बिल्डिंग उसके अलावा नहीं हो सकती। एक फाउंडर या आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, आप पूरी चीजें सीख के तो शुरू कर ही नहीं सकते। तब तक कोई, आप ये भी नहीं कि आप लेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या इशू है, उसको कैसे सॉल्व करना है। आई ट्रूली बिलीव 90% ऑफ वेंचर बिल्डिंग माइंडसेट और पर्सनालिटी है। आपको नहीं पता कि मैं अच्छी हूँ बिजनेस पे या नहीं, बट आई थिंक पर्सनालिटी वाइज आपको लग रहा है कुछ तो आता है, करेक्ट? क्योंकि बोलना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करने हैं, अपने थॉट्स कैसे स्ट्रक्चर करने हैं, किस ऑडियंस के साथ किस तरह से बात करनी है, वो सब चीजें, वो एक मैच्योरिटी, एक सिचुएशनल अवेयरनेस, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हमारे हर बच्चे में बिल्ड होनी चाहिए। थिंक एज बिग एज यू कैन। मेरे नानू ये बोलते थे, अगर सपने देखने हैं ना तो इतने बड़े देखो कि खुद भी डर जाओ। उनका लाइफ का सपना ये था कि इतना बड़ा बिजनेस करने के इनकम टैक्स की रेट होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि हमारा बिजनेस बड़ा है, वरना तब तक तो आप रेलेवेंट ही नहीं हो। और आप कोई भी बड़ा जना देख लो, कोई भी, चाहे आप पॉलिटिक्स में देखो, आप नरेंद्र मोदी को देख लो, अगर एक्चुअली वो चाय वाले थे तो बड़ा सोचा कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो कितना बड़ा सोचा होगा उस टाइम पे कि वहां तक पहुंचना है। जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है, और जो बड़ा सोचने लग जाता है ना वो वहां तक पहुंच ही जाता है, क्योंकि सोच का ही गेम है सारा। तो हर बच्चे को हमारा यही पोस्ट है कि जहां से आप शुरू कर रहे हो, जितना बड़ा सोच सकते हो वहां तक तो पहुंचते हैं अगले 4 सालों में, फिर उसके आगे देखते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है सब पता है, अगेन हमें भी क्या ही पता है ना लाइफ के बारे में, उस सेंस में हम वही शेयर कर सकते हैं जो हमें आता है। कोई भी जना किसी भी एज का हो, किसी भी एक्सपोजर का हो, सब कुछ तो किसी को भी नहीं पता, इसलिए हर स्टेज पे सीखना, लर्न करना बहुत जरूरी है। 18 साल पे जो मेरे गोल्स थे वो 26 पे अलग थे, वो 32 पे अलग है, वो 40 पे अलग होंगे, बट आज के हिसाब से क्या मैं अपना बड़ा सोच सकती हूँ। और मेरे लिए इस समय बड़ा सोचना है कि मेरे 600 बच्चे जो इस साल मेरे कैंपस से अगले साल में जाएंगे वो टॉप क्वालिटी के होने चाहिए। बहुत मुश्किल गोल है, अगर आप एक बार ही सोचो, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत ईजी होता अगर मैं इतना डिटेल ना करूं अपने कोर्स को और थोड़ा सिंपल कर लूं। बाकी कॉलेजेस भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 24/7 अपने बच्चों के लिए अवेलेबल होती हूँ। मेरे हस्बैंड कई बार बोल देते हैं कि मतलब इतना बड़ा नहीं है प्लान किया था हमने फैमिली, ठीक है, जो ये पूरा टाइम बच्चों में बिजी रहते हो, बट मेरा वो सपना है और मेरे लिए वो बहुत बड़ा सपना है। और अगर वो सपना सच होता है तो आने वाले 4 सालों में इस साल के 600 बच्चे हैं जो दुनिया को इम्पैक्ट करेंगे, और वो आगे हर बच्चा 600 जने को अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। तो मेरा विजन वो है, क्योंकि मुझे ये माइंडसेट चाहिए अपने देश में, अपने दुनिया में। दीज आर सम थिंग्स। थैंक यू, एंड आई नो दिस हैज बीन अ लॉट। मैं बाहर ही होंगी आज भी, और कल मैं आपके बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करूंगी उनको वर्कशॉप कराने में। अगर कुछ भी बात करनी है, आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दिस फॉरवर्ड, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टू मेसा ऑल्सो। Hi everyone, we can do a short break of 10 minutes. उसके बाद we'll move ahead to the next bit. तो यहाँ पे ही आना है after the break.